Assalamu alaikum. I am Adnan Shoaib, faculty member at ComSat Institute of Information Technology, and today is our lecture number 21 regarding the course of issues in accounting practices, and today's our topic is revenue recognitions and completed contract methods. Well, in the previous lecture we have studied that how the revenue is being recognized, what are the point to sales, how these point to sales have an effect on overall recognition of a revenue. But at this time we have also studied the percentage of completion method, in which we have a certain method in which we have studied how the percentage of completion method will occur. So and at this time we are going to study what the completed contract method, because एक method नहीं है, दो method हैं जिसके अंदर हम लोगों ने ये पूरी की पूरी revenue recognitions करनी है. So starting with the topic, but before that we see our learning objectives. So as we have studied for many learning objectives in the previous lectures, but today we are going to study apply the completed contract method for a long-term contract, identify the proper accounting for losses on long-term contract, and describe the installment sales method of accounting, and explain the cost recovery method of accounting. That these objectives we are going to study today regarding the revenue recognitions. So we have studied guidelines, departure from sales, revenue recognition at point of sales, revenue recognition at delivery, but only up to percentage of completion method. Completed contract method will be studied today from the start of it, and then we are going to end this topic regarding the revenue recognitions. Now first, starting with the completed contract method, company recognize revenue and gross profit only at a point of sale, that is when the contract is complete. यानी कि कंपनी को तब रिकॉग्नाइज करना चाहिए जब उससे कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाए. हम लोग वहां पे चल रहे थे परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन पे. अंडर दिस मेथड कंपनी एक्यूमुलेट्स कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट इन प्रोसेस, यानी कि एक्यूमुलेट कर रही होती है कॉस्ट लॉन्ग टर्म प्रोसेस की, बट दे मेक नो इंटरम चार्जेस ऑन क्रेडिट टू इनकम, यानी कोई इंटरम चार्जेस नहीं कर रहे होते ऑन इनकम स्टेटमेंट अकाउंट्स फॉर रेवेन्यू, कॉस्ट और ग्रॉस प्रॉफिट, यानी ये सब चीजें इसमें ही इंक्लूड होती हैं. यानी कि देयर विल मेक नो इंटरम चार्जेस और क्रेडिट टू इनकम स्टेटमेंट अकाउंट फॉर रेवेन्यू, यानी कोई भी इंटरम चार्जेस या क्रेडिट्स नहीं हो रहे होते इनकम स्टेटमेंट पे, कॉस्ट और ग्रॉस प्रॉफिट. Now let's see an illustration that we have already studied when we are talking about our overall percentage of completion method. We are going to take it in the same manner. As you can see that contract price 675,000. Again, you have seen this example already, that is 675,000 and 2011 675,000 and 2012 675,000. Cost incurred 150, 287, 400, 170. Estimated cost to complete 450, 170. Billing to customers 135, 360, 180. एंड कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर करंट ईयर. तो 112. अब इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉस्ट का पूरा इसका मेथड बना रहे हैं. क्या होगा, कॉस्ट इनकर टू डेट कितनी हो चुकी है इनकर. नाउ बट वी आर गोइंग टू सी कॉस्ट इनकर टू करंट ईयर कितनी हुई है, 150, 287, 400. ये इसी हिसाब से हम लोगों ने एंटर कर देनी है. देखें यहाँ पे गौर से देखते हैं, 2010 से हम स्टार्ट कर रहे हैं और 2010 में हमारे पास कितनी आ रही थी कॉस्ट इनकर्ड करंट ईयर 150,000. देन वी हैव कॉस्ट एस्टिमेट टू कंप्लीट, वो भी दी हुई थी, वो देखें यहाँ पे एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट इन फ्यूचर ईयर्स, वो कितनी थी 450,000. दैट कम्युलेट्स टू फॉर्म 600,000. देन एस्टिमेटेड परसेंटेज कंप्लीट, कितने परसेंट एस्टिमेटेड अमाउंट है जो परसेंटेज में ये कंप्लीट हो चुकी है, परसेंटेज कंप्लीट. और वो हम कैसे निकालते थे, कॉस्ट इनकर्ड डिवाइडेड बाय द टोटल कॉस्ट जो हमारे पास आ रही थी, दैट वी हैव एलोकेटेड फ्रॉम परसेंटेज कंप्लीशंस, दैट इज 25%. कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 675,000, बट परसेंटेज कंप्लीट इस मेथड में यूज नहीं होगा. हाँ, ये एग्जांपल वही चल रही है, वी आर कंटिन्यूइंग विद द सेम एग्जांपल, बट 25% यूज नहीं होगा यहाँ पे. याद रखिएगा ये 30 हमने निकाल तो लिया है, बट इट्स ऑफ 25% की. हाँ जी, ये हमारे पास जस्ट एक वैल्यू है, इससे ज्यादा नहीं है, बिकॉज वी आर डूइंग व्हाट, कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड. और उसको भी मैं उसी एग्जांपल समझाना चाह रहा हूं जिससे हम लोगों ने परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन को सीखा था. नाउ वी आर गोइंग टू फ्रॉम 600 टू 675. कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी है आपकी 675,000. एज यू कैन सी दैट इट्स अ 675,000. एंड देन रेवेन्यू रिकग्नाइजेबल 168,750 एंड रेवेन्यू रिकग्नाइजेबल प्रायर कोई नहीं था. रेवेन्यू रिकग्नाइज करंटली 168,750 माइनस कॉस्ट इनकर्ड, तो कितना है ग्रॉस प्रॉफिट रिकग्नाइज, दैट इज 118,750. एंड द सेम थिंग विल हैपन, यू कैन सी दैट ऑन द 2011 साइड
437, 170, 10, and then again same thing will happen, that is that contract price is this much and this much. यानी ये सारी चीजें उसमें already you can see in our previous slide that this is already the things that are given. अब contract price कितनी थी, 675,000 थी ना, तो वहां पे निकालता जा रहा है, टोटल कॉस्ट निकाल ली, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस निकाल ली, और यहाँ पे वो देखता जा रहा है कि हाँ जी कितनी अमाउंट आ रही है फॉर रिकॉग्नाइजेबल्स के लिए। और यहाँ पे वो जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेबल लिखा हुआ था 168,750 लिखा हुआ था, बट इट्स अ केस ऑफ परसेंटेज कंप्लीशन। 72% यहाँ पे आ रहा था, कितना आ रहा है यहाँ पे, ऑलमोस्ट इक्वल्स टू द 72% के 72% में चेंज आ रहा था, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 2011 में 72%, और यहाँ पे कितना आ गया 468, एंड अगेन द थिंग्स आर दैट ग्रॉस प्रॉफिट इज रिकॉग्नाइज्ड लाइक दिस। सो that is regarding the completed contract method, but there's the same illustration is being used in a percentage completion method. So what I am going to do, I am actually revising your percentage completion and now moving towards the completed contract method. So now we are moving towards completed contract method with the same example जो हमने भी लेटर जितनी भी वैल्यूज देखी थी। These illustrations are related to the completed contract कि हमने एंट्रीज क्या पास करनी। फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्शन इन प्रोसेस टू कैश, पहली क्या एंट्री आएगी, कंस्ट्रक्शन इन प्रोसेस टू कैश, कितनी अमाउंट से, 150,000 यूएस डॉलर से। 2011 में कितनी आएगी, 287,400। इफ यू आर गोइंग टू सी इन आवर प्रीवियस स्लाइड दैट हाउ मच इज योर ओवरऑल cost incurred in current year, that is 287,400. So that means that same entry will be passed in that year, and that entry would be, you can see that construction in process to cash. हाँ जी, बिलिंग कितने की थी हमने, अकाउंट रिसीवेबल्स टू बिल ऑन कॉन्ट्रैक्ट कितना किया था, 135, 360 एंड 180। कैश टू अकाउंट रिसीवेबल्स कितने थे, 1,12,500। ये भी कहां मिलेगी, आप गौर से देखेंगे तो उसमें आपको ये आपको इजीली वहां पे नजर आ जाएगी। देखिए यहाँ पे 1,12,000 कैश रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर, दैट इज 1,12,000, 262,500, और यहाँ पे 330, एंड देन वी आर मूविंग टूवर्ड्स अनदर वन, कैश अकाउंट रिसीवेबल्स भी हो गए, ये हमने किया ना। देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इन प्रोसेस, कंस्ट्रक्शन एक्सपेंस, कंस्ट्रक्शन रेवेन्यू, कोई चीज की एंट्री नहीं पास हो रही जिस तरह परसेंटेज कंप्लीशन में होती थी। बिलिंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्शन इन प्रोसेस, इसकी भी कोई एंट्री पास नहीं हो रही। 2011 में देखें तो वही एंट्रीज पास हुई हैं, उन्हीं वैल्यूज की और वही वैल्यूज हुई हैं। बट 2012 जब ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रही थी तो यहां पे हमने क्या किया, एंट्री पास की कितने की, 6,07,500 की, और साथ ही 67,500 की भी एंट्री पास की। इफ आई एम गोइंग टू सी इन आवर प्रीवियस स्लाइड, तो यहां पे आ रहा है 6,07,500, जहां पे 100% कंप्लीशन हो गई। कितनी क्या हो गई है, 100% कंप्लीशन हो गई है। तो हमने क्या किया, उसे कंस्ट्रक्शन इन प्रोसेस में सबको हिस्सा वो उठा के किस में डाल दिए, कंस्ट्रक्शन रेवेन्यू में डाल दिए। किस में डाल दिया हमने, कंस्ट्रक्शन रेवेन्यू में, बिकॉज इफ यू सी इन द प्रीवियस स्लाइड 6 लाख तो हमारी क्या थी, टोटल कॉस्ट थी जो हमने इसमें से निकाल ली थी। उसके बाद जो माइनस किया, डिफरेंस निकला, वो हमने क्या किया उससे, दैट वाज बी इंक्लूडेड एज योर ओवरऑल कंस्ट्रक्शन इन प्रोसेस। क्या निकला वो हमारा, कंस्ट्रक्शन इन प्रोसेस। तो इसका मतलब है जो टोटल कॉस्ट कंप्लीटेड हुई है 100% पे, वो हमारे पास कितनी आ रही, 6,07,500 की। कितने की, 6,07,500 की, और बाकी अभी भी किसमें पड़ा हुआ है, कंस्ट्रक्शन इन प्रोसेस में। तो जब कंप्लीट हुआ है मैंने तभी उसे डाला है, उससे पहले नहीं डाला। दैट इज द ब्यूटी ऑफ अ कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड। एंड लास्ट में बिलिंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट और कंस्ट्रक्शन इन प्रोसेस कितने थे, यानी कि बिलिंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट मिल गए हमें, एंड कंस्ट्रक्शन इन प्रोसेस में क्या एंट्री पास कर दी, 675,000 की। यानी कि बिल अब हमने क्या किया, हमने सारी की सारी जो वो सेल कर दी है, और बिल कितना ड्यू है, 675,000 का, यानी सारी की सारी उठा के हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन रेवेन्यू में पुट कर ली है। तो दैट मीन्स वी हैव टू रिकवर द 675,000 थ्रू कंस्ट्रक्शन इन प्रोसेस। Now further illustration, income statement, revenue on contract, cost of construction, that is gross profit, it's easy one। इसमें कोई इसमें लंबी नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा वर्किंग थी, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन में इसमें कोई वर्किंग नहीं है, जस्ट सिंपली आपने एंटर किया है कि ये चीजें। अब देखें प्रीवियस स्लाइड में अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पे गौर से देखें, कंस्ट्रक्शन एक्सपेंस कितना आ रहा है, 607, कंस्ट्रक्शन इज 67,500, और कंस्ट्रक्शन रेवेन्यू 675,000, यानी इतनी आ रही है। इसका मतलब यह कि 607,500 भी बना है। कंस्ट्रक्शन इन एक्सपेंस जो कंप्लीटली बन चुकी है वो कितनी है, 67,500। तो जब हमें उसे बेचूंगा तो कितने की बिकेगी, 67,500 की। मींस टू से एक्चुअल कॉस्ट मुझे उस पर कितनी लगी है, 6,07,500,
लेकिन बेच कितने का रहा हूं 6,75,000 का। तो जितने का मैं बेचूंगा उतने ही कंस्ट्रक्शन इन प्रोसेस में फर्क आएगा ना। तो दैट मींस कंस्ट्रक्शन इन प्रोसेस जितने की अभी रहती है वो भी इसमें इंक्लूडेड होगी, बिकॉज इन 100% दैट इज ऑल्सो बीइंग अ पार्ट ऑफ इट। सो रेवेन्यू ऑन कॉन्ट्रैक्ट आ गया था, यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे तो कितना आ रहा है रेवेन्यू ऑन कॉन्ट्रैक्ट कितना 675,000 और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितनी थी दिस वन। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है 67,500। यही अब मैं रिलेट कर रहा हूं पिछली एंट्री से कि उसमें हम लोगों ने क्या ऐसे लिखा था कंस्ट्रक्शन इन प्रोसेस, तो वो हमारा क्या एक्चुअली हो गया दैट इज ऑफ 6 आवर ग्रॉस प्रॉफिट, वो हमारा क्या कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। अब करंट एसेट में अकाउंट रिसीवेबल्स भी होंगे हमारे, और उसमें देखें कॉस्ट एंड प्रॉफिट ग्रेटर देन बिलिंग क्या है, ग्रेटर देन क्या है बिलिंग। तो कितने से अमाउंट से है दैट इज ऑफ 15,000 एंड बिलिंग इज ग्रेटर देन कॉस्ट एंड प्रॉफिट, तो उसे हम कहेंगे 57,600, इसे कहेंगे हम 57,600। सो लेट्स गो फॉर द फर्दर एग्जांपल। सो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम दोनों मेथड्स को कंपेयर करें, किसको परसेंटेज कंप्लीशन को भी और कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड, इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ 2011 द हार्डन कंस्ट्रक्शन कंपनी रिसीव्ड अ कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड एन ऑफिस फॉर $5 million. The project is estimated to take 3 years to complete. अब यहां पे हम दोनों को कंपेयर करें, you can so that you have a clear idea कि इनमें डिफरेंस क्या है। According to the contract, Hardin will bill the buyer installment over the construction period according to the pre-arranged schedule. Information related to contract is as actual construction cost is incurred during the year 2011 में 1.5 million, 2012 में 1 million and then 2013 में 1.6 million. Actual construction cost incurred in prior year. 2011 से पुराना ईयर कोई नहीं था, पिछले तो 2012 से 2011 में क्या आया था 1.5 मिलियन, और उससे पहले में क्या आया था, ये सारी बात है। अब टोटल कितना खर्चा होगा तो 2013 में, तो टोटल प्रायर ईयर्स में हुआ है 2.5 ईयर्स में। तो ये हमारे पास आया। तो एट द एंड कम्युलेटिव एक्चुअल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी आ रही है 1.5 मिलियन, 2.5 एंड 4.1 मिलियन। एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट एट द एंड ऑफ ईयर, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट एट द एंड ऑफ, यानी कि कितनी कॉस्ट लगेगी कि कंप्लीट हो, कितना कंप्लीट होगा एट द एंड ऑफ ईयर में, तो वो कितना है 2.25 मिलियन, 1.5 मिलियन, और यहां पे कोई कंप्लीशन यानी कि कोई भी, यानी कि एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट एट द एंड ऑफ ईयर वहां पे कोई नहीं होगा, यानी मींस टू से सारा कंप्लीट हो जाएगा। टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट किससे निकलेगी, एक्चुअल प्लस एस्टिमेटेड। एक्चुअल कितनी थी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, उतनी लगी थी, प्लस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट, तो हमने उन दोनों को ऐड किया, तो यहां पे हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 3750 एंड देन 4 मिलियन एंड देन 4.1 मिलियन। ये हमारे पास आ रही है इसकी वैल्यूज, मींस एक्चुअल कॉस्ट प्लस एस्टिमेटेड कॉस्ट, दैट इज वी आर टोटल कॉस्ट। नाउ बिलिंग मेड ड्यूरिंग द ईयर कितने की थी 1.2 मिलियन, 2 मिलियन एंड 1.8 मिलियन, इसकी हमने बिलिंग की। एंड कैश कलेक्शन कितने की हुई थी 1 मिलियन, 1.4 एंड 2.6 मिलियन। ये हमारे पास टोटल सिचुएशन आ गई जिसमें एक्चुअल कॉस्ट भी दी हुई है, कम्युलेटिव भी दी हुई है, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट भी दी हुई है, बिलिंग भी दी हुई है, और कैश कलेक्शंस भी दिया हुआ है। नाउ स्टार्टिंग विद इट, first of all accounting for the cost of construction and account receivable with both completed contract and percentage of completion method, all costs of construction are recorded in an asset account called construction in process। तो हमने क्या किया है कि दोनों को क्या किया, कंस्ट्रक्शन इन प्रोसेस टू कैश। 2011 में क्या हुआ 1.5, 2012 में 1 मिलियन एंड 2013 में 1.6 मिलियन। सेकंड में उसके बाद क्या होगा, अकाउंट रिसीवेबल्स कितने के आए थे 1.2 मिलियन के, वो भी रिकॉर्ड कर लिए, 2 मिलियन के आए थे वो भी, 1.8 वो भी रिकॉर्ड कर ली, जितना कैश रिसीव हुआ वो भी हमने रिकॉर्ड कर ली। यानी हमने सबसे पहले कंस्ट्रक्शन इन प्रोसेस ली, फिर अकाउंट रिसीवेबल्स को हमने क्या किया, बिलिंग ऑन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पे हमने उसे अकाउंट रिसीवेबल्स जनरेट करा लिए, और उसके बाद हमने कैश टू अकाउंट रिसीवेबल्स कर दी, यानी जो हमने बिलिंग कर दी थी उसके लिए हमने अकाउंट रिसीवेबल्स जनरेट करा लिए थे। देन मूविंग फर्दर, now as you can see that these are the whole entries। now we are moving के हाँ जी, अब दोनों कंडीशन में ग्रॉस प्रॉफिट रिकग्निशन में क्या डिफरेंस है, एक कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड है और एक परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड है। फर्स्ट टॉकिंग अबाउट कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड, कंस्ट्रक्शन इन प्रोसेस कितने की थी 9 लाख की थी, कितने की निकल रही है वो 9 लाख की निकल रही है, एंड
कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितनी थी 4.1 मिलियन, तो रेवेन्यू कितना मिला आपको, दैट इज फ्रॉम द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट दैट इज ऑफ 5 मिलियन, यानी कंस्ट्रक्शन इन प्रोग्रेस भी में रहने दिया है ग्रॉस प्रॉफिट को और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, और हमारे पास रेवेन्यू कितना आ गया 4.1 मिलियन, क्योंकि टोटल कॉस्ट कितनी आ रही थी 4.1 मिलियन ना आखिर में देखी थी. इफ यू सी ऑन आवर प्रीवियस स्लाइड, that on the slide number 9, as you have seen that the total construction cost, cumulative actual construction cost कितनी आ रही 4.1 मिलियन, कॉन्ट्रैक्ट कितनी अमाउंट का था 5 मिलियन का था, डिफरेंस कितना है 9 मिलियन. 9 मिलियन का इसका मतलब है हमारे पास क्या आ गया है ग्रॉस प्रॉफिट, और हमने वो ग्रॉस प्रॉफिट हमने रिकॉर्ड कर लिया है और क्रेडिट कर दिया रेवेन्यू फ्रॉम लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट को. ये हमने रिकॉर्ड कर लिया ग्रॉस प्रॉफिट. इट वुड बी इजी ऑन द कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट साइड, बट व्हाट हैपेंस ऑन द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन. सबसे पहले शुरू करेंगे 2011 से. वहां पे देखें ना 2011 की एंट्री है ना 12 की, सिर्फ 13 की एंट्री है जब वो कंप्लीट हो गया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालना शुरू करेंगे. कंस्ट्रक्शन इन प्रोसेस स्टार्ट में कितनी थी, दैट वाज ऑफ ऑलमोस्ट 1.5 लाख, और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितनी थी, दैट इज ऑफ 1.5 मिलियन, एंड दैट कम्युलेट्स टू फॉर्म रेवेन्यू फ्रॉम लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 2 मिलियन, यानी इतने की हमारे पास कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ रही थी. कैसे निकल रही है, इफ आई वुड गो बैक ऑन द प्रीवियस स्लाइड, गौर से देखें तो यहां पे कितना आ रहा है 1.5 मिलियन आ रहा है. गौर से देखें तो 1.5 मिलियन इज द कम्युलेटिव एक्चुअल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट. अब 1.5 यहां आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि दैट इज आर एक्चुअल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ड्यूरिंग द ईयर, यानी ये हमारी एक्चुअल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ रही है. एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कंस्ट्रक्शन इन प्रोसेस कितनी थी 5 लाख की थी, तो दैट टोटल कम्युलेट्स टू द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट दैट इज ऑफ 2 लाख. ऑन द नेक्स्ट नोड कंस्ट्रक्शन इन प्रोसेस ग्रॉस प्रॉफिट कितना था 1,25,000, और कितनी हमने एडिशनल की 1 मिलियन, कितनी की हमने 1 मिलियन की, तो हमारे पास कितना आ गया 1,125,000. सो इफ वी आर गोइंग टू सी फर्दर बैक इन आवर स्लाइड, एज यू कैन सी दैट नाउ ये हमारे पास कहां से 1,25 की कहां से आ रही है चीजें, ये किधर से हमारे पास रिसीविंग आ रही है. सो हमने यही चीजें हमने इसमें आइडेंटिफाई करनी है कि ये कहां से. देखें अब हमारे पास क्या आ गया 1,25,000 का हमारे पास डिफरेंसेस जनरेट हो रहे हैं, और वही हमने कहा कि दैट इज बीइंग यूज्ड. अब यहां पे देखें टोटल जब इस एंट्री में हुई थी तो अकाउंट रिसीवेबल्स कितने आए थे हमारे पास 2012 में, तो वो आए थे हमारे पास 2 मिलियन के. क्यों 2 मिलियन के यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल्स हमें मिले थे, और उन 2 मिलियन के हिसाब से हमने क्या किया है वैल्यूएशंस की हैं. और जब वैल्यूएशंस की हैं तो यहाँ पे हमारे पास कंस्ट्रक्शन में आ रहा है, तो देखें 5 लाख 1.5 मिलियन, एंड देन इन द नेक्स्ट ईयर 1 मिलियन, and 1 million is the cost of construction, and 1.125 is your total revenue from long term contract. Then 1.6 million and 275,000, that is 1,875,000. So in both method the same amount of revenue, cost of gross profit are recognized, यानी कि दोनों में same amount of gross profit recognize होंगे. In both method we add the gross profit to the construction in process, यानी किसको करते हैं gross profit में जो भी होगा उस gross profit को हम add करते हैं, we add gross profit to the construction in process asset, यानी it's a part of construction in process. और both method में same amount of revenue, cost and gross profit are recognized, यानी दोनों method में हम same amount of gross profit को recognize करते हैं. So that what we known as the overall रिकॉर्डिंग ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट. अब 5 यहाँ पे आप पूरा देखें तो यहाँ पे 275 प्लस 125 कितना बना 375, 4 लाख 4 लाख प्लस 5 लाख 9 लाख. कंप्लीट देखें तो वही आ रहा है, बस ये है कि वहां पे 9 लाख वन टाइम में आपको रिपोर्ट किया है, यहाँ पे आपने 3 डिफरेंट लेवल्स पे उसे रिपोर्ट किया है. और यही आप देख सकते हैं इन आवर प्रीवियस स्लाइड, इफ यू सी दैट, तो यहां पे हमने कंप्लीट इसी चीज की रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, जिसमें हम कहते हैं कि दैट इज द डिफरेंस दैट एग्जिस्ट, कि किस तरह हम लोग इस पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और इसी की रिकॉर्डिंग की बेस पे हमने सारी चीजें एनालाइज कर रहे हैं. नाउ फर्दर the same journal entry is recorded to close out the billing on construction of contract and construction of progress accounts under the completed contract and percentage of completed method. यानी दोनों में यही एंट्री पास होगी जब हम उसे क्लोज करेंगे, यानी बिलिंग जब रिसीव हो जाएगी तो दैट इज द थिंग बिलिंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट दैट इज 5 मिलियन, और वहीं पे कंस्ट्रक्शन इन प्रोसेस हो जाएगी दिस इज 5 मिलियन. जैसे हमने प्रीवियस में देखा था तो यहाँ पे हमारे पास कितनी आ रही थी, यहाँ पे हमने जब एंड किया था इसकी हमने सारी सिचुएशन, तो हमारे पास एंट्रीज ये आ रही थी हमारे पास
कि हमने एट द एंड सारा कुछ किस में डाल रहे थे, हमारे पास कॉस्ट कंस्ट्रक्शन इन प्रोसेस में और रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे। अब हमने जब सारा कुछ बिलिंग कर ली, बिलिंग के बाद हमने सारा का सारा कंस्ट्रक्शन इन प्रोसेस को हमने वापस कर दिया, एंड द एंट्री वुड बी लाइक बिलिंग ऑन कंस्ट्रक्शन डिवाइड बाय कंस्ट्रक्शन इन डिवाइडेड क्रेडिट इज द कंस्ट्रक्शन इन प्रोसेस दैट इज ऑफ 5 million. Under the completed contract method, all revenues and expense related to projects are recognized when the contract is completed. जब recognize होंगे, जब सारा कुछ recognize हो जाएगा। कैसे? 2011 construction cost देखें 1.5 थी, एंड 115, then 2012 की 1 million, then 2500, then 2.5 million, then 1.6 million, total 900 का आया, then 5 million. बिलिंग को देखें गौर से तो कितना आ रहा है 1.2, देन 2 million, 1.8 million, दैट इज ऑफ ऑल 5 million, यानी 5 million की हमें आई है, तो दैट मींस इट गॉट टू बी इक्वेटेड आ गई, ठीक है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द यूजिंग परसेंटेज कंप्लीशन मेथड, जब हम बात करेंगे किसकी परसेंटेज कंप्लीशन की, तो वी रिकॉग्नाइज अ पोर्शन ऑफ एस्टिमेटेड ग्रॉस प्रॉफिट ईच पीरियड बेस्ड ऑन द प्रोग्रेस टू डेट। नाउ द वैल्यूज 5 लाख आ रही थी, 1,25,000 आ रही, 275 आ रही थी, वो कहां से आ रही थी, लेट्स सी। We determine the amount of gross profit recognized in each period using the following logic. Gross profit recognized this period कितना है, total estimated gross profit into percentage completed to date minus gross profit recognized in prior period, वो उसमें से हम minus करते जाएंगे। Total estimated gross profit into percentage completed to date minus gross profit recognized to prior period. So that how we do. Now you can see that in the case of percentage completion method, allocation किस तरह gross profit की हो रही है, just get it. So if anybody has missed my previous lecture part of percentage completion method, that's the whole completion method which can guide you all. Contract price 5 million, 5 million and 5 million ये सब में है। Construction cost एक्चुअल कितनी हुई थी 1.5, 1 million, 1.6, कम्युलेट हुई एस्टिमेटेड रिमेनिंग कॉस्ट टू कंप्लीट कितनी रह गई थी 2.25 मिलियन, यानी ऐसी इतनी रहती थी, एंड 1.5 मिलियन उसमें रहती थी और वहां नीचे कोई नहीं रहती थी। तो हमने टोटल निकाली, टोटल कॉस्ट हमारे पास आ गई। टोटल ग्रॉस प्रॉफिट किस तरह निकलेगा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट, हमने निकाल ली इससे क्या चीज, दैट इज टोटल ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो उस टाइम आ रही थी माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी थी 5 मिलियन माइनस 3750, तो हमारे पास क्या चीज आ गई, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट, यानी सीजीए सेल्स माइनस सीजीएस। तो हम लोगों के पास जो वैल्यू आ गई दैट इज नोन एज टोटल ग्रॉस प्रॉफिट इनटू मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। कैसे निकलेगी ये, एक्चुअल कॉस्ट जो भी आएगी, एक्चुअल कॉस्ट इनकर ड्यूरिंग द ईयर, जितनी भी आई है एक्चुअल कॉस्ट, या यूं समझ लेंगे टोटल कम्युलेटिव एक्चुअल कॉस्ट टू डेट, यानी कितनी कॉस्ट आज तक लग चुकी है, डिवाइडेड बाय योर ओवरऑल टोटल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट टू डेट डिवाइड बाय टोटल, यानी जितनी कॉस्ट इस पीरियड में लगी है डिवाइड करें उसे टोटल कॉस्ट में से, यानी कितनी कॉस्ट जो हमारी टोटल इसमें से आ सकती है, यानी कितनी कॉस्ट उसमें सामने आ सकती है, और उसी को कहते हैं हम दैट इज एक्चुअल कॉस्ट टू डेट, यानी कितनी एक्चुअल कॉस्ट टू डेट हमारे पास आ रही है, यानी कितनी एक्चुअल कॉस्ट टू डेट हमारे पास सामने नजर आ रही है। सो व्हाट इज दैट मेथड, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, कीप इन माइंड आज तक जो कॉस्ट लग चुकी है डिवाइड बाय जो टोटल कॉस्ट लगनी है, दैट इज व्हाट वी नोन एज योर ओवरऑल कंस्ट्रक्शन फेज, यानी कि कितनी कॉस्ट टोटल है लगी है उस वक्त, और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट टू डेट अभी तक क्या लगी है। तो दैट मींस कम्युलेटिव मस्ट प्लस एस्टिमेटेड रिमेनिंग, यानी आज की प्लस एस्टिमेटेड जो फ्यूचर में लगनी है उनको ऐड करें तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, और उस टोटल में से कितनी अमाउंट लग चुकी है वो उससे डिवाइड कर देंगे, दैट इज 40%, सेम इज द केस 2012 उसके साथ है, एंड सेम इज द केस विद 4100 दैट इज 100%। नाउ मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, टोटल ग्रॉस प्रॉफिट मल्टीप्लाई परसेंटेज टू कंप्लीट दैट इज 5 लाख, 6 लाख 20,000 एंड देन 900,000, माइनस करते जाएंगे तो वी हैव ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 500,000, 125,000 एंड 275,000, दैट इज द होल मेथड ऑफ परसेंटेज कंप्लीशन। सबसे पहले क्या किया आपने, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थी, देखा हर साल में कितनी प्राइसेस लगी थी वो निकाली, उसके बाद कम्युलेटिव निकाला, हमें उसके बाद पता लग गया कि टू डेट आज तक कितनी कॉस्ट लग चुकी है, प्लस हमें पता था कि एस्टिमेटेड फ्यूचर में कितनी लगेगी टू कंप्लीट इट, तो हमारे पास वो लगी हुई थी कि दैट इज 2.25 मिलियन, वो हमने ऐड की तो हमारे पास आ गया कि फ्यूचर में इतनी कॉस्ट लगनी है दैट इज 3750। अब हमारे पास उसमें से उस 3750 में से लग कितनी चुकी थी, दैट इज 15
1.5 मिलियन डिवाइड बाय 3750, तो हमारे पास परसेंटेज आ गई। सेम इज द केस विद 2012 एंड सेम इज द केस विद 2013। ये हमारे पास आ गई। इसको मल्टीप्लाई किससे करें? ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाला? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी? एक्चुअल प्लस एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट दैट इज रिक्वायर्ड। तो वो हम जब दोनों चीजें निकालेंगे तो दैट मींस टू से कि ये हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। इनका नेगेटिव किया तो हमारे पास टोटल आ रही 5 लाख, 1,27,000 एंड 275,000। दैट इज द होल थिंग दैट वी आर गोइंग टू सी। और कितनी अमाउंट से होगा? एक्चुअल कॉस्ट के अमाउंट से, कि जितनी एक्चुअल कॉस्ट 115 लग रही है 115 लगेगी, देन 1.6 मिलियन तो 1.6 मिलियन लगी। एज वी आई एम गोइंग टू ऑन द बैक स्लाइड सो यू कैन हैव अ क्लियर आइडिया व्हाट आई एम सेइंग। ये हमारी पास एंट्रीज हुई थी, तो आप गौर से देखें इसके अंदर, वो देखें हर एक में कंस्ट्रक्शन इन प्रोग्रेस ग्रॉस प्रॉफिट 5 लाख आ रहा है, 125,000 एंड 275,000 इसके अंदर आ रहा है। तो बिकॉज यहाँ पे गौर से देखें तो कंप्लीटेड मेथड तो इजी है कि उसमें आप कॉस्ट ऐड करते जाएं, लेकिन जब हम बात करते हैं परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन की तो इट हैज द फॉलोइंग मेथड। एज यू कैन सी इन द कंप्लीटेड मेथड, उसमें क्या है? कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऐड अप करते जाएं, आखिर में जो बच जाएगा उसे हम कहेंगे दैट इज नाउ बिकम आवर ग्रॉस प्रॉफिट। So that is the way how the gross profit will be calculated in percentage of completion method. Percentage of completion method allocation of gross profit. Now what करेंगे? gross profit क्या होगा? with the time allocate होगा। 1.5 मिलियन में 5 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट है तो हम उसमें ऐड कर देंगे। फिर हमने 1 मिलियन और लगाया और ग्रॉस प्रॉफिट कितना कमाया? 1,25,000, वो भी ऐड कर देंगे। फिर हमारे पास हमने फिर उसमें 1.6 मिलियन और लगाया तो उसमें हमें कितना प्रॉफिट आया? दैट इज 275,000। तो हमारे पास टोटल कितना आ रहा है? 5 मिलियन। एंड सेम इज द केस विद ऑन बिलिंग ऑन कंस्ट्रक्शन। तो 1.2, 2.0 एंड 1.8 दैट कम्युलेट्स टू फॉर्म 5 मिलियन। दैट्स द हाउ percentage of completion method allocation of gross profit works. Now percentage of completion allocation of gross profit, यानी percentage of completion method है और allocation of gross profit कैसे हो रहा है गौर से देखते जाएं। यहाँ पे 5 मिलियन का 40% लिया तो हमारे पास आ गया 2 मिलियन, और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन निकाल दी तो कितना आया? 5 लाख। फिर अगेन 5 मिलियन का 62.5% लिया। क्या लिया हमने? 62.5%। so that leads to our 3125 minus 2 million less recognized in 2011। तो पीछे क्या बचा? 1125,000 और माइनस की कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, so we have overall $125,000 and same is the case with this one, 5 million, that is of 100%। as you can see in our previous slide you have a clear idea कि how much, देखें 40%, 62%, 100%, हम उसी को लेके चल रहे हैं। पहले 40% मल्टीप्लाई किया और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन माइनस कर दिया, आ गया हमारे पास। फिर रेवेन्यू को 62% से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आई, उसमें से प्रीवियस ईयर का जो भी रिकॉग्नाइज हो चुका है वो माइनस करना है। तो कितना माइनस किया था रेवेन्यू? हमने 2 मिलियन रिकॉग्नाइज हो चुका है, उसे दोबारा रिकॉग्नाइज किया तो वहां पे डबल काउंटिंग आ जाएगी, और जब डबल काउंटिंग आ जाएगी तो देयर वुड बी एन इशू। सो दैट मींस 3125 माइनस 2 मिलियन, दैट इज 1125,000। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इस साल कितना लगा? 1 मिलियन, वो माइनस किया तो 125,000 आ गया। देन रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कितना है? 100%, 5 मिलियन। प्रीवियसली कितना रिकॉग्नाइज हो चुका था? दैट इज 3125, वो हमने उसमें से माइनस कर दिया, और माइनस करने के बाद हमारे पास कितना आ गया इसमें से? दैट इज 1,875,000, और उस पे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितनी लगी थी? 16 लाख। सो वी हैव 275,000। दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू मैयर रेट, कि किस तरह हमने इसे मैयर किया। तो यानी हर दफा पिछले साल का जो रिकॉग्नाइज रेवेन्यू है वो माइनस करना है, एंड देन वी हैव टू माइनस द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू सी द इनकम स्टेटमेंट ऑफ ईच ईयर विल रिपोर्ट appropriate revenue of cost of construction amount in the case of percentage of completion method allocation of gross profit. Then इनकम रिकॉग्निशंस। नाउ अब हमने किसकी तरफ देख रहे हैं? इनकम में रिकॉग्निशंस कैसे आएंगी। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे रिकॉग्नाइज होगा? 2011, 12, 13 टोटल ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है? 9 लाख। कितना आ रहा है हमारे पास? 9 लाख आ रहा है, और 9 लाख के हिसाब से ही हमने यहाँ पे एंट्रीज करनी है। Now there is a balance sheet recognition. Billing on construction contract are subtracted from the construction in process to determine the balance sheet presentations. क्या करेंगे हम? Billing on construction are subtracted from construction in process to determine balance sheet presentation. यानी construction in process, CIP stands for construction in process. अगर construction in process greater than billings है, क्या है? greater than billings है, तो जो इतना पार्ट रह जाएगा वो एसेट होगा। लेकिन अगर बिलिंग्स ज्यादा है और CIP कम है
तो जो पोर्शन होगा उसे हम क्या शो करेंगे, दैट इज बीइंग लायबिलिटी। क्या मतलब होगा इसका, इसका मतलब यह है कि आपने किसी चीज को अभी बनाना भी नहीं शुरू किया और उसके आपने पैसे ले लिए पहले, जस्ट लाइक जीआईटी जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में मेंशन किया था, जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी सिस्टम, कि आपने एक चीज को बनाना भी नहीं शुरू किया, आपने उसके पैसे ले लिए, क्योंकि अगर बनाना शुरू किया होता तो वो सीआईपी में होता, लेकिन आपने उसके पैसे पहले ले लिए, दैट मीन्स नाउ इट्स बिकम्स लायबिलिटी। वो क्या बन जाएगा, आपका लायबिलिटी बन जाएगा। बैलेंस शीट रिकग्निशन आती हैं, किस तरह बैलेंस शीट में रिकग्नाइज होगा, द बैलेंस शीट इन द कंस्ट्रक्शन इन प्रोसेस अकाउंट डिफर्स बिटवीन मेथड बिकॉज द अर्लियर ग्रॉस प्रॉफिट रिकग्निशन दैट अकर्स अंडर द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। सो वी आर गोइंग टू सी कि दोनों में क्या फर्क आता है। अकाउंट रिसीवेबल्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट 2000 इन एक्सेस ऑफ बिलिंग 1.2, तो कितना आया यहाँ पे, दैट इज ऑफ 8 लाख, यानी कितना कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट कितना आ रहा है यहाँ पे, 8 लाख का आ रहा है। और करंट लायबिलिटीज कितनी आ रही है, बिलिंग कितनी है, 3.2 इन एक्सेस ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, दैट मींस 3125, दैट इज ऑफ 75,000। यानी करंट एसेट में भी आ रहा है और करंट लायबिलिटीज में भी आ रहा है फॉर 2011 एंड 2012। 2011 में हमारे पास कॉस्ट एंड प्रॉफिट कितना आ रहा था, दैट इज ऑफ 2 मिलियन। कितना आ रहा था हमारे पास, 2 मिलियन, यानी रिसीवेबल्स कितने आ रहे थे, 2 मिलियन, जिसमें से बिलिंग, सॉरी रिसीविंग कह रहा हूं, जो हमारे पास टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट आई थी दैट इज ऑफ 2 मिलियन, और उसमें से हमें बिलिंग कितनी हो गई थी, 1.2 मिलियन को हम बिल कर चुके थे। इसका मतलब है अभी भी हमारे पास कुछ अमाउंट पड़ी है इन द कंस्ट्रक्शन इन प्रोसेस में। एज वी गो, इफ आई गो इन द प्रीवियस स्लाइड, सो यू कैन हैव अ क्लियर आइडिया कि यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं तो वहां पे अगर एग्जांपल आप वापस देखें, रिपीट में देखें, तो वहां पे देखें क्या आ रहा है, योर ओवरऑल वैल्यूज आ रही है, 2 मिलियन, 1 मिलियन, हर चीज आ रही है। बिलिंग मेड कितने की हो गई थी, 2 मिलियन की हो चुकी थी 2012 में। सो इफ वी आर गोइंग टू सी के 2 मिलियन 2012 में अगर बिलिंग हो चुकी थी, तो इन दैट केस व्हाट आई एम गोइंग टू सी इज कि वहां पे अब 2 मिलियन की हमने बिलिंग कर दी, जिसमें से रिसीविंग कितनी हुई है अभी तक, 12 मिलियन की। तो बाकी क्या बचा, किस में आएगा वो, अभी अकाउंट रिसीवेबल्स है ना, तो इसका मतलब है 8 लाख वहीं आ गए। जबकि बिलिंग नीचे क्या हो रही है, दैट मींस 3200 हो गई है, कितनी, 2 मिलियन तो इस दफा की थी, 12 पिछली की हुई थी, और रिसीव कितने की हो चुकी है कॉस्ट एंड प्रॉफिट की, दैट इज 3125, तो रिमेनिंग वुड बी रिकॉर्डेड एज करंट लायबिलिटी। किस तरह रिकॉर्ड करेंगे उसे, करंट लायबिलिटी। यानी बिल हम लोग किसको कर चुके हैं, 3.2 कर चुके हैं, लेकिन हमें एक्सेस ऑफ कितना मिल चुका है अभी तक, कितने को होना चाहिए, 3125 का हमारे पास बिल होना चाहिए। एज वी हैव सीन इन द प्रीवियस स्लाइड्स दैट देयर वुड बी ए 3125, यानी रिकॉग्नाइज कितना रेवेन्यू हो रहा है 2012 में, दैट इज ऑफ 3125, लेकिन 2012 में हम कितनों को बिल भेज चुके हैं, दैट इज ऑफ 3200। तो यहां पे हमने जो एडिशनल है दैट इज रिकॉर्डेड एज लायबिलिटी। देखिए 2012 में मुझे जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, दैट इज ऑफ 5 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 62.5%, और उसको जब मैं निकालता हूं तो आंसर आता है 3125। लेकिन जब मैं उसके नीचे बिलिंग को देखता हूं तो 2 मिलियन का बिलिंग एक ने कर दी है, 2 मिलियन 2011 की थी, दोनों मिलाई कितनी हो गई, 3.2 मिलियन की बिलिंग हो गई, और अभी रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज कर रहा हूं 2012 में 3125, तो इसका मतलब है मैंने बिलिंग एक्सेस में कर दी है, तो वो कितने की थी, 75,000 इन एक्सेस। कंप्लीटेड गुड्स में क्या करेंगे, कॉस्ट कितनी थी 1.5 मिलियन इन 2011, और एक्सेस में बिलिंग कितनी थी 1.2, तो कितना आएगा 3 लाख को हम कहेंगे दैट इज एसेट। करंट लायबिलिटीज में आएंगे तो कितने की बिलिंग हो चुकी 3.2, और एक्सेस ऑफ कॉस्ट कितनी जा चुकी थी, क्यों कैसे, 1.5 तो 2011 और 1 मिलियन 2012, दोनों को मिलाया 2.5, तो कितना एक्सेस में गया, 7 लाख गया एक्सेस में। सो दैट इज द रिपोर्टिंग डिफरेंसेस कि 7 लाख को हमने लायबिलिटी कर दिया बिकॉज वो 7 लाख हमने ओवर एंड अबव बिलिंग कर दी है, जिसको अभी हमने बनाना भी एक्चुअली शुरू नहीं किया। तो वो जो भी नहीं शुरू किया उसमें हम लोगों ने यहाँ पे इसको एडजस्टमेंट्स करनी है। Revenue recognition before delivery, long-term contract losses in the current period on a profitable contract, percentage of completion method, यानी इसे हमेशा क्या यूज करेंगे, percentage of completion method only, the estimated cost increase requires a current period adjustment of gross profit recognized in prior period, यानी कि current period adjustment of gross profit करेंगे जो उस पीरियड से जो gross profit पिछली दफा मिल चुका है। जैसे हमने ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया था, कितना था 625,000 था ना, उसमें से 5 लाख माइनस किया, कितना बचा 125,000। ये हमारे पास क्या बन रहे थे,
that is of gross profit. Loss on unprofitable contract. Under both percentage and completed method, the company must recognize the current period, the entire expected current loss. जितना भी लॉस हुआ है उस से करंट पीरियड में ही आपने शो कर देना है, चाहे जितना भी वो लॉस हुआ हो. और करंट पीरियड एडजस्टमेंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट के लिए भी आपको प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट को साथ लेके चलना है. लॉस इन करंट पीरियड ऑन अ प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट वो भी आपने इसमें रिकॉर्ड करना है, और लॉस इन अनप्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट दोनों को. द कंपनी मस्ट रिकॉग्नाइज करंट पीरियड द एंटायर एक्सपेक्टेड करंट लॉस. और परसेंटेज कंप्लीशन में कैसे होगा? एस्टिमेटेड कॉस्ट इंक्रीज रिक्वायर अ करंट पीरियड एडजस्टमेंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट. यानी एस्टिमेटेड कॉस्ट अगर इंक्रीज हो रही है तो वो भी एडजस्टमेंट कितनी होगी? करंट पीरियड के ग्रॉस प्रॉफिट में होनी है, उसमें नहीं होनी. देखें जब हम लोग प्लस करते थे हम लोग क्या करते थे? कॉस्ट जो लग चुकी है प्लस एस्टिमेटेड, अगर एस्टिमेटेड बढ़ जाएगी तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा? दैट गोइंग टू बी रिड्यूस्ड. वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, और रिड्यूस होने के बाद ही उसकी वैल्यू सामने आएगी. Now let's see illustration. Loss on profitable contract. कैसे लॉस होता है? कैस्पर कंस्ट्रक्शन को कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 675, अगेन करंट कॉस्ट इनकर्ड करंट ईयर, एस्टिमेटेड कॉस्ट वो भी दी हुई है सारी, बिलिंग कितनी 135 ही कर दी है, करंट रिसीट्स कितनी इतने इतने की मिल चुकी हैं, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज अज्यूमिंग दैट द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीट एट द एंड ऑफ 2011 was 215,436 instead of 170,10. कितनी है वो? 215,436 instead of 170,10. यानी 1,70,100 की जगह कितना है? 2,15,436. So 150 प्लस एस्टिमेटेड 600 को हमने 25% पे रखा. 25% यू कैन इजीली कैलकुलेट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, और जो भी उसका कॉस्ट इनकट कितनी हो चुकी है आपकी, वो हो चुकी है 150, और टोटल कॉस्ट कितनी है? 6 लाख. तो 150 डिवाइड बाय 600 करें तो जारी बात है 150 मल्टीप्लाई बाय 4 600 हुआ, तो ऑब्वियसली इट्स 25%. ठीक है, 25% कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमारे पास सामने पड़ी है. 675,000 थी हमारे पास, और 675,000 को हम लोग जब एडजस्ट करते हैं तो देन वी हैव अ टोटल रिकॉग्नाइजेबल दैट इज ऑफ रेवेन्यू इज 168,750. तो 168,750 हमारे पास आता है, और रिकॉग्नाइज करंटली दैट इज ऑफ 168,750. एंड देन कॉस्ट इनकर्ड करंटली कितना हो चुका है? 150,000. कितना हो चुका है वो? 150,000. तो ग्रॉस प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कितना हो रहा है? 18,750. दैट इज द सेम एग्जांपल एज वी हैव डन बिफोर, जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, वो यही एग्जांपल लेके चल रहे हैं. वो गौर से देख लें आप, तो यहीं पे आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस टोटल कॉस्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और टोटल कॉस्ट को माइनस करें तो हमारे पास क्या आ रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, और उसी को हम लोग परसेंटेज कंप्लीशन भी निकाल रहे हैं. तो आप इफ यू इजीली कैन सी दैट, तो देयर इज अ इजी थिंग ऑन दिस साइड दैट ओवरऑल 675,000 is there and total cost is there, but percentage completion is there. तो जो percentage completion है हमने उसी के हिसाब से क्या निकाल लिया? प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया, और ग्रॉस प्रॉफिट को उसी हिसाब से देख लिया, यानी कि जितना आ रहा था उसको हमने उसी से मल्टीप्लाई कर लिया. एंड देन वी हैव मल्टीप्लाइड, दैट मींस परसेंटेज कंप्लीट इज देयर, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेबल, एंड रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइजेबल, एंड व्हेन द रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइजेबल दैट मींस current cost will be reduced from it, and we have 118,750 is there. Same is the case 2011 and 2012. इन दोनों केसेस में हम यही चलेंगे. That is the loss of 390,000. Now where is the changes? वहां पे कितना था? Estimated cost to complete कितनी थी? 170,100. If you see in a previous one, you have a clear idea. यहां पे कितनी आ रही थी? 287 आ रही है ना, 287,400. वो कह रहा है नहीं, यहां पे आ रहा है दैट इज 215,436. कितनी आ रही है? 215,436. यानी इंस्टेड ऑफ दैट वैल्यू वी आर गोइंग टू यूज 215,436, एंड दैट वी हैव अ नेगेटिव ऑफ 3,900. नाउ लॉस किस में आ रहा है? दैट इज ऑफ इन 2011. 2011 में क्या चीज आ रही है? लॉस आ रही है. सो हाउ वी आर गोइंग टू डू इज, गौर से देखें, कंस्ट्रक्शन इन प्रोसेस कितनी थी? 18,750. 1.5 लाख की थी, तो हमारे पास टोटल आया था रेवेन्यू 168,700. 2011 की कोई एंट्री पास नहीं की, कोई एंट्री इसकी लाइन में नहीं है. 2012 की सेम एंट्री है, बट कंस्ट्रक्शन इन प्रोसेस अगेन 3,900, यानी मींस क्रेडिट साइड.
Construction expense 287,400. The construction revenue is 283,500. Means to say कि आपने जो कंस्ट्रक्शन की है उसकी वैल्यू में से लॉस को निकाल दिए. 287,400 इज योर कंस्ट्रक्शन एक्सपेंस और उसमें से हमने क्या चीज रिड्यूस कर दी है, दैट इज 3,900. रिड्यूस किया तो हमारे पास आया 283,500. मींस टू से कंस्ट्रक्शन एक्सपेंस से वो लॉस को कम करना है और एंटायर लॉस उसी पीरियड में ही रिपोर्ट करना है, चाहे कंप्लीटेड हो चाहे परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन हो. अगेन सेम एग्जांपल, वही चीजें चल रही है. अब वो कह रहा है कि जो वैल्यू है दैट वाज 246,038 इंस्टेड ऑफ 1710. अब वो उसने चेंज की हुई है वैल्यू. अगेन लॉस अब कैसे रिपोर्ट करेगा, वही चीजें चल रही है. द सेम थिंग्स वर गोइंग टू हैपन. यहां पे लॉस कितने का आ रहा है उसके पास, दैट इज ऑफ 27,188 और वैल्यू को प्लग भी कर दिए. और यहां पे हमारे पास कम्युलेटिव लॉस आ रहा है दैट इज ऑफ 8,438. यानी टोटल लॉस कितना आ रहा है 8,438. बिकॉज ग्रॉस प्रॉफिट का अगर हम कम्युलेटिव लॉस निकालें तो 8,438 का आ रहा है. सो दैट इज द एंट्री वी आर गोइंग टू पास इन इट. कैसे 18,750. अगेन सेम एंट्री, आखिर में सेम आ रही है. बट अब ये देखें 290 में से अगेन एडजस्ट हुआ 27,188 एंड द एंट्री वुड बी लाइक दिस. यू कैन सी that it is on the both first thing is on credit, then it is of debit and then it is of credit. So that means debit credit जब balance हुए तो then we have a construction expense of 290,000 and construction revenue would be reduced to 263. क्या हुआ, construction revenue reduce हुआ. उससे पहले क्या हुआ था, if you have to seen that in the previous one the whole रेवेन्यू विल बी रिड्यूस्ड. तो यानी हर जगह पे हमने क्या करना है, रेवेन्यू रिड्यूस करना है बाय रिड्यूसिंग योर ओवरऑल कंस्ट्रक्शन. जो भी हमारी कंस्ट्रक्शन आई है उसको हमने रिड्यूस कर लेना है. सो नाउ लॉस इन अनप्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट. कई दफा अभी तो ये प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा था, अब अगर अनप्रॉफिटेबल इन कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें क्या करेंगे, उसमें तो सिर्फ परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन लगे, कंप्लीशन में ही एडजस्टमेंट हो सकती है ना. जब अगर हमारे पास क्या हो रहा हो, लॉस ऑन अनप्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो, क्या हो रहा हो, लॉस ऑन अनप्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट. So now we are further moving it for the completed contract. अब यहां पे completed क्या होगा, जिस ईयर में लॉस हुआ उसी ईयर में ही करना है. लॉस ऑन completed contract to construction in process क्या कम कर देंगे, स्ट्रेट construction in process credit, loss in construction contract is debit. यानी सिंपल स्ट्रेट एंट्री यही पास हम कर देंगे. Now there is certain disclosure in the financial statement that is required when recognition before delivery is there. Construction contractor should declare the method of recognizing revenue. Either there is a percentage completion or there is a completion contract method. The method of recognizing revenue, the basis used to classify asset and liability as current nature and length of operating cycle. किस बेसिस पे आपने current nature की liability और asset recognize की और क्या length थी operating cycle की. The basis of recording inventory, क्या basis थी recording की, FIFO, LIFO, whatsoever. The effect for any revision of estimate, जितनी estimated values ले रहे थे उसमें कोई revision के chances थे. The amount of backlog on uncompleted contract, कितना, the amount of backlog on the uncompleted contract वो भी show करना है, and the details about receivables that is also being shown. Completion of production basis. In certain cases, companies recognize revenue at completion of production, even though no sale has been made. यानी किस पे होता है कि जब completion production complete हो जाती है तब ही वो recognize करते हैं revenue. For example, precious metals and agriculture products कि जब production complete हो जाएगी तब भी वो revenue recognize करेंगे, उससे पहले revenue recognize नहीं करेंगे. Revenue recognitions after delivery. अब यहां तक क्या था, बिफोर का भी कर लिया, आफ्टर का अब हम करने लगे. When the collection of sale price is not reasonably assured and revenue recognition is deferred. यानी अगर collection of sale price जो है वो reasonably assured नहीं है and revenue is deferred, method of deferring revenue क्या है, installment, sales revenue, cost recovery method generally employed, और deposit method भी, that is a third one. यानी जब भी हमें पता हो कि कलेक्शन ऑफ सेल प्राइस जो है वो इजीली अवेलेबल नहीं है तो देयर इज अ चांसेस कि हमें रेवेन्यू को डेफर यानी फ्यूचर में जाके कहीं पीछे जाके बाद में मिलेगा, हमें बाद में देंगे. तो उसके क्या मेथड है, दो मेथड है उसको डेफर करने की. इसे कहते हैं इंस्टॉलमेंट सेल मेथड और द नेक्स्ट वन इज द कॉस्ट रिकवरी मेथड. ये दो मेथड यूज होते हैं.
Talking about installment sales method, recognizes income in the period of collection rather than in the period of sale. यानी recognize income in the period of collection, जिस period में collection होगी उसी period में income record करनी rather than the period of sales. Recognize both revenue and the cost of sale in the period of sale but defer gross profit to a period in which cash is collected. दोनों को उसी period में revenue और cost उसी जब sale के time में record करें, लेकिन gross profit कब recognize करें? जब cash collect हो जाए, उससे पहले record ना करें. सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस आर नॉट डेफर्ड. सेलिंग और एडमिन एक्सपेंस कभी डेफर नहीं हो सकते. Acceptability of stock installment sales method. The professions conclude that except in special circumstances the installment method of recognizing revenue is not acceptable. कोई special circumstances हैं जिसके अंदर installment method नहीं use हो सकता. क्या rational है? Because the installment method does not recognize any income until cash is collected. वो कोई income recognize नहीं करता जब तक cash collect ना हो जाए. It is not in accordance with the accrual receipt. ये accrual receipt के साथ सही नहीं है, यानी accrual receipt के साथ in accordance नहीं है. As we are using the accrual basis, so now cost recovery method, that is the another one. Recognize no profit until cash payment by buyer exceeds the cost of merchandise sold. कोई recognize ना करें cash जब तक आपकी cash payment by बायर जो है वो एक्सीड ना कर जाए मर्चेंडाइज कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज जो सोल्ड की है, यानी आपकी कॉस्ट से ज्यादा जब तक उससे आपके पेमेंट ना मिल जाए कोई चीज भी कोई प्रॉफिट भी रिकॉग्नाइज करने की जरूरत नहीं है. अ सेलर इज परमिटेड टू यूज कॉस्ट रिकवरी मेथड टू अकाउंट फॉर सेल इन विच देयर इज नो रीजनेबल बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड कलेक्टेबिलिटी. ये कब यूज करना है? कभी आपके पास कोई बेसिस नहीं है फॉर एस्टिमेटेड कलेक्टेबिलिटी की, आपको ये पता लग सके कि यार कितने मुझे पैसे वापस आने, तो मेरे पास कोई एक्सेप्टेंस बेसिस नहीं है फॉर कलेक्टेबिलिटी. इन एडिशन यूज ऑफ दिस मेथड इज रिक्वायर्ड. कब यूज ऑफ दिस मेथड रिक्वायर्ड? वेयर अ हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट रिलेटेड टू कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल. यानी ये हाई डिग्री ऑफ रिस्क हो फॉर कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल. इन प्रीवियस सेशन प्रीवियस वन यू सी दैट इन विच केस the method does not recognize income until cash is collected. It is not in accordance with accrual concept. सिर्फ इसमें ये प्रॉब्लम थी क्योंकि स्पेशल सर्कमस्टांसेस के लिए चाहिए था, लेकिन इसमें वो कह रहा है कि in addition use this method is required where high degree of uncertainty required. ये कब चाहिए होगा? when there is no reasonable basis for collections and when there is uncertainty exists, high level of uncertainty exists, then cost recovery is used. Now let's see cost recovery method. In 2012 Fastmeyer Manufacturing sells inventory with a cost of $25,000. यानी सेल करेगा इन्वेंट्री विद द कॉस्ट ऑफ $25,000 टू हेगले कंपनी फॉर $36,000. यानी कितने क्या होगा? वो सेल कर रहा है इन्वेंट्री ऑफ $25,000, कॉस्ट है फॉर कितने की? 36,000. यानी सेलिंग प्राइस $36,000 है और कॉस्ट 25,000. हाईले विल मेक पेमेंट ऑफ 18,000 in 2012, 12,000 in 2013 and 6,000 in 2014. If the cost recovery method applies to this transaction, Haile make payment as scheduled. Fastmeyer recognize cash collection revenue, cost and gross profit as follow. Revenue कितना आ रहा है? 36,000 आ रहा है और आगे कोई नहीं आ रहा. कैश कलेक्टेड कितना है? पहले में 18,000, देन 12,000, देन 6,000. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है? 25,000 था, तो कितना आ रहा है? डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट 11,000. अब इसमें भी डेफर्ड कितना है? 11,000 और नेक्स्ट में भी कितना आ रहा है? 11,000 आ रहा है एंड देन इट इज ऑफ 6,000. लेस रिकॉग्नाइज ग्रॉस प्रॉफिट. क्या कर रहे हैं हम? इसमें से रिकॉग्नाइज कर रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट. पहले में कोई रिकॉग्नाइज नहीं हुआ था, दूसरे में 5,000 रिकॉग्नाइज हुआ था. 5,000 रिकॉग्नाइज किया तो आंसर क्या आया? 6,000 आया. 6,000 को हम आगे ऊपर फर्दर टॉप पे ले गए तो आंसर क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट 0. यानी पहले डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने हैं. डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास हर एक कैलकुलेट हो जाएंगे, तो उसके बाद हमने कहना है कि ओके अब 1 by 1 2012 का पहले ग्रॉस प्रॉफिट हमने डेफर्ड निकाला, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट रखा, फिर रिकॉग्नाइज माइनस किया, जो पीछे डेफर्ड बचा उसमें से रिकॉग्नाइज किया. सो इन दिस वे वी हैव जस्ट जनरेटेड द ओवरऑल शेड्यूल ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इन केस ऑफ कॉस्ट रिकवरी मेथड. यानी कॉस्ट रिकवरी मेथड हमेशा यही कहता है कि दैट यू हैव टू डेफर द ग्रॉस प्रॉफिट एज यू हैव सीन इन द प्रीवियस स्लाइड दैट कैश पेमेंट बाय एक्सीड्स द total merchandise revenue. So that means that is your overall cost recovery method. Now first illustration the extended one. Fastmeyer's journal entry to record deferred gross profit of highlight transaction after recording at sale and cost of sale and normal method. यानी Fastmeyer entry record कर रहा है deferred gross profit की, तो कैसे record करेगा? देखिएगा sales 36,000, cost of goods sold 25,000, then deferred gross profit 11,000. That is how they are going to record the deferred gross profit.
नाउ इन 2013 एंड 14 डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट बिकम रियलाइज्ड, तो कैसे करते जा रहे हैं, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट अभी क्रेडिट में गया था तो नाउ डेबिट में आएगा, एंड देन रियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट 5000 एंड देन डेफर्ड 6000 एंड रियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट 6000. दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू रियलाइज आवर ग्रॉस प्रॉफिट. रेवेन्यू रिकॉग्निशन आफ्टर डिलीवरी डिपॉजिट मेथड भी होता है. इसमें डिपॉजिट मेथड क्या होता है, सेलर रिपोर्ट द कैश रिसीव्ड फ्रॉम बायर एज अ डिपॉजिट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लासिफाई इट ऑन द बैलेंस शीट लायबिलिटी. यानी सेलर रिपोर्ट द कैश रिसीव्ड फ्रॉम बायर, सेलर बताएगा कि हाँ जी कैश रिसीव होगी बायर से एज अ डिपॉजिट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट एंड कैसे एज अ डिपॉजिट एंड क्लासिफाई इट एज बैलेंस शीट ऑन एज लायबिलिटी. द सेलर डज नॉट रिकॉग्नाइज रेवेन्यू और इनकम अंटिल सेल्स इज कंप्लीट. तब तक नहीं करना है जब तक सेल्स कंप्लीट ना हो जाए. यानी कि जब भी बायर ने एज अ डिपॉजिट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लासिफाई इट एज अ बैलेंस शीट एज लायबिलिटी, तभी सेलर जो है वो रिपोर्ट करेगा कैश रिसीव फ्रॉम बायर एज अ डिपॉजिट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लासिफाई. यानी कि दैट मींस यू आर गोइंग टू क्लासिफाई इट. सो हाउ देयर, so that is a summary of product revenue recognitions. First of all, point and say, see illustrations. We have seen that लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स कंस्ट्रक्शन परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड था, जिसके अंदर हमने कहा था लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी डिपेंडेबल. हमने पूरा मेथड इसमें कंप्लीट देखा था. फिर हमने देखा था कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड, जिसमें यूज ऑफ शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट व्हेनेवर प्रोडक्शन कंप्लीशन कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द लॉन्ग टर्म. जब वो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन नहीं यूज होगा तभी आपने कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट यूज करना है. कंप्लीशन ऑफ प्रोडक्शन बेसिस इमीडिएटली मार्केटेबिलिटी कोटेड प्राइस इन यूनिट इंटरचेंजेबिलिटी, कई दफा ये भी यूज किया जाता है मेथड. इंस्टॉलमेंट सेल्स एंड कॉस्ट रिकवरी एब्सेंस ऑफ रीजनेबल बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड डिग्री ऑफ कलेक्टेबिलिटी, तो वहां पे भी आपने क्या यूज करना है, इंस्टॉलमेंट सेल या रिकवरी. कलेक्टेबिलिटी ऑफ रिसीवेबल इज अनसर्टेन एंड ग्रॉस प्रॉफिट आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड ऑन द एक्चुअल रिसीव. डिपॉजिट मेजर कैश रिसीव बिफोर द सेल्स ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड, यानी कैश रिसीव हो जाए बिफोर सेल ट्रांजैक्शन, नो रिसीवेशन ऑफ रेवेन्यू विल बी मेड. इट इज जस्ट लाइक अनअर्न्ड रेवेन्यू. किसकी तरह है ये, अनअर्न्ड रेवेन्यू की तरह है. Now revenue recognitions for the special sales transactions के revenue recognition for special sales transaction कौन सी हो सकती है. पहला नाम जो special sales transaction में आता है वो आता है franchise का. 4 types of franchise arrangement are there: manufacturer retailer, manufacturer wholesaler, service sponsor retailer and wholesaler retailer. These are the all types of franchise. पहली मैन्युफैक्चरर और रिटेलर की, मैन्युफैक्चरर और होलसेलर की ये भी फ्रेंचाइज होती है. सर्विस स्पॉन्सर एंड रिटेलर उसकी भी होती है, एंड होलसेलर एंड रिटेलर उसकी भी आपस में फ्रेंचाइजेस हो सकती हैं. फास्टेस्ट ग्रोइंग कैटेगरी इन सर्विस स्पॉन्सर रिटेलर, जो सबसे ज्यादा होती है वो सर्विस इन स्पॉन्सर रिटेलर, कि आप कहते हैं हमारी सर्विस प्रोवाइड करें, हम आपको स्पॉन्सर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल KFC, पिज्जा हट, दीज आर द सर्विस स्पॉन्सर रिटेलर, कि सर्विस स्पॉन्सर हुई भी है और रिटेलर आप खुद हैं. सॉफ्ट आइसक्रीम, फ्रोजन, टेस्टी, फ्रीजी, TCV, डेयरी क्वीन, दीज ऑल आर द फ्रेंचाइज. फूड इन, मैकडोनल्ड, KFC, बर्गर, रेस्टोरेंट, TGI, फ्राइडेज, पिज्जा हट, डेनीज, मॉटल्स, होटल इन Marriott's, Best Western, these all are the franchise. Auto rental, Avis, Hertz, National, other HR Block, Manic, Mufflers and 7-Eleven stores. These all are the franchises and faster growing, that is sponsor and retailer wali. Franchises, 2 sources of revenue: sales from initial franchise and related assets and seller, यानी sale of initial franchises and related assets, and continuing fee based on operation on franchise. यानी franchises जो है वो कैसे कमाती हैं या franchise से कैसे कमाते हैं, सेल हो रही हो एक तो इनिशियल फ्रेंचाइज की, उसकी बेस पे आप कर रहे होते हैं, और जो आप फी ऑफ ऑपरेशंस ऑफ फ्रेंचाइजी ये सारी जो पे करते हैं ये उसके लिए एक इनकम होती है एज अ फ्रेंचाइज. यानी फ्रेंचाइजेस के लिए ये 2 चीजें होती हैं जो इनकम का पार्ट बनती हैं. The franchisor normally provides the franchisee with the assistance in the site selection, यानी franchisor जो franchises provide कर रहा है वो assistance कहता है location selection में, evaluation of potential income की कितनी income हो सकती है, supervision of construction activity किस तरह की construction है, क्योंकि franchise है तो एक जैसी construction होना जरूरी है. असिस्टेंस इन एक्विजिशन ऑफ साइन, फिक्चर एंड इक्विपमेंट, यानी किस तरह के साइंस होने चाहिए, किस तरह का लोगो होना चाहिए, किस तरह के फिक्चर्स होने चाहिए, किस तरह के इक्विपमेंट होने चाहिए, इसमें भी वो गाइडेंस देता है. बुक कीपिंग एंड एडवाइजरी सर्विस, इसमें भी वो गाइड करता है कि किस तरह आपने बुक कीप करनी है. एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग, किस तरह की मैनेजमेंट ट्रेनिंग हो, किस तरह के एम्प्लॉइज हो. क्वालिटी कंट्रोल कैसे करना है, एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन कैसे करनी है. दीज ऑल थिंग्स आर गाइडेड बाय फ्रेंचाइजर. क्वालिटी कंट्रोल, आपको अगर पिज्जा हट है तो आपको पता है कि हाँ जी 18 मिनट के बाद पिज्जा नहीं सेल करना, अगर 18 मिनट से शेल्फ पे हो गए तो वहां से पिज्जा डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है.
इनिशियल फ्रेंचाइज फी होती है, फ्रेंचाइज रिकॉर्ड इनिशियल फी एज रेवेन्यू ओनली व्हेन दे मेक सब्सटेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस दे आर ऑब्लिगेट टू परफॉर्म एंड व्हेन कलेक्शन ऑफ फी इज रीजनेबली अश्योर्ड। यानी जब आपकी कलेक्शन ऑफ फी जो होगी वो रीजनेबली अश्योर हो जाएगी तो दम आप कहेंगे कि भाई दैट इज नाउ आवर रेवेन्यू। Substantial performance occurs when the franchisor has no remaining obligation to refund any cash received or excuse any non-payment of note and has performed all the initial service required under the contract। कि जब उसके पास सारी चीजें, उसने सारी obligations जो पे ऑफ कर दी हैं और परफॉर्म किया है अच्छा इनिशियल सर्विस में and required under the contract, यानी जब भी रिक्वायरमेंट आए under the contract, तो इसे हम कहते हैं that is known as substantial परफॉर्मेंस। तो दैट इज मींस उसने अपनी सारे ऑब्लिगेशंस को दूर कर दिए, यानी और तभी रिक्वायर्ड करना है उससे एज अ रेवेन्यू जब वो अपनी सारे सब्सटेंशियल परफॉर्मेंस उसने जो भी ऑब्लिगेटेड टू परफॉर्म है तभी हम इसे एज अ कलेक्शन डील करेंगे, वरना इसे कलेक्शन नहीं देंगे क्योंकि सब्सटेंशियल परफॉर्मेंस अगर पूरी नहीं होगी तो मे बी आपको ये फी जो है ये वापस करनी पड़े बिकॉज यू प्रिज्यूम इट एज इनएलिजिबल टू रन योर फ्रेंचाइज। आपकी फ्रेंचाइज रन करने से उसे आप इनएलिजिबल इसमें करार दे सकते हैं अगर वो सारी सब्सटेंशियल परफॉर्मेंस ना शो करे। एग्जांपल्स ऑफ एंट्रीज फॉर इनिशियल फी, यानी इनिशियल फी को हम लोग कैसे रिकॉर्ड करते हैं। Tums Pizza Incorporation charges initial franchise fee of $50,000 for the right to operate a franchisee of Tums Pizzas. Of this amount, $10,000 is payable when franchisee sign the agreement, and the balance is payable in 5 annual payments of $8,000 each. The credit rating of franchisee indicates that money can be borrowed at 8%. यानी कितने पे borrow कर सकता है 8% पे. The present value of ordinary annuity of 5 annual received $8,000 each discounted at 8% is $31,941.68. The discount of 8,058 represents क्या represent show करता है the interest revenue to be accrued by the franchisor over the payment period. अब क्या हो गया रहा है, कितनी फी देनी उसने 5,000, जिसमें 10,000 उसे फौरन साइनिंग पे देनी और 8,000 की उससे क्या करना है 10,000 जो है उसने एज साइनिंग देनी और 8,800 की कितनी इंस्टॉलमेंट है 5 एनुअल पेमेंट्स है। द क्रेडिट रेटिंग शो करता है कि वो जो फ्रेंचाइजी है उसे कितने पे लोन मिल जाएगा 8% पे मिल जाएगा और जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 8 अमाउंट्स हैं यानी 5 अमाउंट्स हैं 8,000 की तो उसका वैल्यू कितनी आ रही 31,941.68। द डिस्काउंट ऑफ 8,058.32 रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट रेवेन्यू। कितने का डिस्काउंट 31,000 यानी क्योंकि देखें 31,941 है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके 50,000 में से 10,000 तो एट फेस दे दिए, पीछे के अपना बता 40, जब 40 की हमने एन्युटी निकाली तो कितना आ रहा है 31,941। इसका मतलब जो बाकी बचा वो क्या कहलाएगा दैट इज योर डिस्काउंट। डिस्काउंट जो आ रहा है रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट रेवेन्यू, क्या शो करता है ये इंटरेस्ट रेवेन्यू टू बी अक्रूड बाय द फ्रेंचाइजर ओवर द पेमेंट पीरियड। ये अक्रू कौन कर रहा है फ्रेंचाइजर कर रहा है ओवर द पेमेंट पीरियड। एग्जाम्पल देखते हैं, आगे चलते हैं। If there is a reasonable expectation that Tums Pizza Incorporation may refund the down payment and if substantial future services remains to be performed by Tums Pizza, the entry would be, यानी if there is a reasonable expectation that Tums Pizza may refund the down payment and if substantial future services remain to be performed by Tums Pizza, the entry would be cash 10,000, note receivable 40,000 and discount on note receivable 8,558.32 and unearned franchise revenue fee कितनी है 41,941। ये हम लोग क्या चीज लेंगे दैट इज आर टोटल अनअर्न्ड फ्रेंचाइज रेवेन्यू। ये क्या आ रहा है हमारा अनअर्न्ड फ्रेंचाइज रेवेन्यू, तो जिसे हम कहते हैं दैट इज आर ऑल ओवरऑल अनअर्न्ड फ्रेंचाइज रेवेन्यू बिकॉज वो भी तो इसे फ्यूचर पे लेके जा रहा है ना, तो दैट्स व्हाई इट्स वैल्यू बिकम्स 41,941, दैट इज आर टोटल वैल्यू। Now, other illustration, if the probability of refunding the initial franchise fee is extremely low, यानी probability of refunding of initial franchise बहुत low है, the amount of future services to be provided to a franchisee is minimal, यानी वो कहता है the amount of future services to be provided by the franchisee is minimal, the collectibility of note is reasonably assured, substantial performance has occurred, the entry should be cash 10,000, note receivable 40,000, discount on note receivable this one,
रेवेन्यू फ्रॉम फ्रेंचाइज सेम एंट्री। याद रखिएगा अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफंडिंग इनिशियल फी इज लो तब भी एंट्री जो है वो सेम रहेगी, इस एंट्री में कोई भी चेंज नहीं आएगा। और सब्सटेंशियल परफॉर्मेंस हो गई है तो एंट्री वुड बी लाइक दिस। Now further, if the initial down payment is not refundable, वो initial down payment जो refundable नहीं है, represents a fair measure of the service already provided, with the significant amount of service still to be performed by terms visa in future period, and collectively of note is reasonably assured. यानी collectability of note is reasonably assured. Again 10,000 notes receivable, discount. And this one is your entry. If initial payment is still not refundable, चाहे refundable हो या non-refundable हो, entry यही रहेगी। And represent the fair value of service already provided, और fair value of service show करता है already provided, with significant amount of service still to be performed by terms visa। यानी terms visa ने अभी भी significant amount of services देनी है, यानी 40,000 की रहती हैं in future period, and collectability of note is reasonably assured, ये 40,000 की surety है मिलने की। The entry would be like this। एंड अनअर्न्ड फ्रेंचाइज रेवेन्यू कितना आ रहा है इसमें, दैट इज ऑफ 31,941। देखें एंट्री क्या आ रही है, कैश 10,000, नोट्स रिसीवेबल 40,000, 50,000 कंप्लीट, डिस्काउंट 8050। रेवेन्यू फ्रॉम फ्रेंचाइजी कितना मिलेगा, 10,000 है। कितना मिलेगा हमें, 10,000 व्हेन इट इज नॉट रिफंडेबल। अगर ये रिफंडेबल होगा तो ये चीज हमारे पास बीच में नहीं आएगी। क्यों बीच में नहीं आएगी, बिकॉज अगर मेरे पास ये रिफंडेबल है तो इसका मतलब है इस पे मेरा हक तो नहीं आया, इसका मतलब है दैट वुड बी इंक्लूडेड इन माय ओवरऑल वैल्यू ऑफ व्हाट वी से दैट अनअर्न्ड फ्रेंचाइज फी। तो जब तक अनअर्न्ड फ्रेंचाइज फी है तो तब तक मैं ऐसे शो करूंगा, लेकिन अगर नॉन रिफंडेबल है इसका मतलब है ये तो हमारी, चाहे कॉन्ट्रैक्ट खत्म करता है या ना करे। अगर रिफंडेबल है तो ये किसका पार्ट होगा, अनअर्न्ड फ्रेंचाइज फी का पार्ट होगा। लेकिन अगर उसने कहा कि नॉन रिफंडेबल है तो उसने कहा ठीक है जी ये हमारा हो गया, बाकी आपका है। नाउ फर्दर, द इनिशियल डाउन पेमेंट इज नॉट रिफंडेबल अगेन एंड नो सर्विसेज आर रिक्वायर्ड बाय द फ्रेंचाइजर। कोई सर्विसेज फ्रेंचाइजर को नहीं चाहिए, बट कलेक्शन नोट इज सो अनसर्टन दैट रिकग्निशन ऑफ नोट इज एन एसेट इज अनवारंटेड, यानी रिकग्निशन ऑफ नोट एज एन एसेट इज अनवारंटेड, देन द एंट्री वुड बी अगेन 10,000, रेवेन्यू फ्रॉम फी 10,000। बस यहीं तक आप कर दें। क्यों, बाकी की बात ही नहीं है, श्योरिटी नहीं है तो मैं क्यों एंट्री करूं। जब अगर श्योरिटी होगी तभी अनअर्न्ड करूंगा ना, यहां जी सर्विसेज देने के बाद है। जब मेरे पास श्योरिटी नहीं है तो मैं सिर्फ और सिर्फ कैश और रेवेन्यू तक ही रहूंगा, उससे आगे जाऊंगा ही नहीं कि क्या लॉस हुए क्या प्रॉफिट हो, क्योंकि जब मेरे पास नोट के ऊपर एन्युटी लगाऊंगा तभी मेरे पास गेन और लॉस आएगा ना, उससे पहले तो नहीं आएगा। तो इसका मतलब है अगर वो श्योर ही नहीं है तो मैं उस पर गेन और लॉस क्यों लगाऊं। देन under the same condition as those listed in case of 4 above, except that the down payment is refundable as or substantial services are yet to be performed, the entry would be cash, unearned revenue is 10,000. In case 4 or 5 where collection of the note is extremely uncertain, यानी 4 और 5 में क्या है, extremely uncertain है, franchisor may recognize cash collection using installment sale method or cost recovery method। वो किस तरह से recognize करेगा, या तो इसे इंस्टॉलमेंट सेल मेथड के थ्रू करेगा या कॉस्ट रिकवरी मेथड के थ्रू इसे करेगा। Continuing franchise fee, continuing franchise fee are received in return from continuing rights granted by the franchise agreement and providing such service as a management training, यानी किस में रिसीव की जाती है, बिकॉज उसके साथ एग्रीमेंट है कि वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, मैनेजमेंट ट्रेन करेगा, एडवर्टाइज कराएगा, प्रमोट कराएगा, लीगल असिस्टेंस एंड अदर सपोर्ट, ये सारी चीजें फी के अंदर इंक्लूडेड है। फ्रेंचाइजर रिपोर्ट कंटिन्यूइंग फी एज रेवेन्यू, वो रिपोर्ट करेगा वेयर दे आर अर्न एंड रिसीवेबल फ्रॉम फ्रेंचाइज, वो इसे कंटिन्यूइंग फी के तौर पे चार्ज करेगा। Now there is certain franchisor costs should only defer direct costs, usually incremental costs relating to specific franchise sale of for which revenue has not yet been recognized, यानी कुछ franchisor cost होती हैं जो हमने recognize इसमें करनी होती हैं, और वो यही कह रहा है should ordinarily defer direct costs, usually incremental costs relating to specific franchise sale related to
स्पेसिफिक फ्रेंचाइज सेल, यानी कोई स्पेसिफिक फ्रेंचाइज सेल से जो आपकी रिलेटेड टू डायरेक्ट कॉस्ट है वो आपको डेफर करनी पड़ती है, फॉर विच रेवेन्यू इज नॉट येट बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, शुड नॉट डेफर कॉस्ट विदाउट रेफरेंस टू एंटिसिपेटेड रेवेन्यूज एंड इट्स रियलाइजेबिलिटी। जब तक आपके डेफर नहीं करनी जब तक आपके पास कोई रेफरेंस ना हो कि हाँ जी ये रेवेन्यू मुझे फ्यूचर में रियलाइज हो सकता है। अगर कोई श्योरिटी नहीं है तो डोंट रियलाइज इट, उससे जरूरत ही नहीं है आप डेफर करने की। इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ रेगुलर एंड रिकरिंग नेचर सच एज सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस दैट आर इनकर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ फ्रेंचाइज सेल शुड बी एक्सपेंस्ड एज इनकर्ड। यानी ये सारे एक्सपेंसेस हैं जो फ्रेंचाइज लेवल पे आते हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट कॉस्ट, जितनी भी लग रही है इंक्रीमेंटल कॉस्ट जिससे कि बेस पे हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट जितनी सेलिंग एंड एडमिन के लिए लग रही है, तो दीज आर द फ्रेंचाइजर कॉस्ट। और प्रॉफिट क्या होता है? फी और जो कुछ उसने बेचा है। डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंसर, फाइनेंसर का डिस्क्लोजर जरूरी होता है। ऑल सिग्निफिकेंट कमिटमेंट और ऑब्लिगेशन रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रेंचाइज एग्रीमेंट दैट इज मस्ट बी डिस्क्लोज्ड। एनी रेजोल्यूशन ऑफ अनसर्टेनिटीज रिगार्डिंग द कलेक्टेबिलिटी ऑफ फ्रेंचाइज फी, यानी कोई भी रेजोल्यूशन ऑफ अनसर्टेनिटी हो वो बहुत ज्यादा डिस्क्लोज करनी है रिगार्डिंग फ्रेंचाइज फी। Where possible, revenue and costs related to franchisor-owned outlet should be distinguished from those related to franchised outlet. यानी where possible, revenue and costs related to franchisor outlet should be distinguished from those related to franchised outlet. यानी franchised और franchisor outlet की आपने revenue और cost को separate रखना है, दोनों को mix नहीं करना। फ्रेंचाइज की आउटलेट की फ्रेंचाइज्ड आउटलेट की जो ओवरऑल रेवेन्यू एंड कॉस्ट है वो डिफरेंट होगा और फ्रेंचाइजर आउटलेट की कॉस्ट और बेनिफिट डिफरेंट होगा, यानी कॉस्ट और रेवेन्यू डिफरेंट होगा। तो इन दोनों को आपने जितना डिस्टिंग्विश करके रखेंगे उतना बेहतर रहेगा। Now there is certain profitability ratio for which we are going to use profit margin on sale, that is net income over sales, as you have studied in your bachelor side. Return on asset, net income divided by average total asset, that is known as return on asset. Return on shareholders equity, net income divided by average shareholders equity. So that these are the ratios for the valuation of profitability. Return on equity, key equipment, profitability, activity and financial leverage. ये key equipment होता है जो profitability भी बताता है, liquidity भी बताता है और financial leverage को भी बताता है। कैसे बताता है? Let's see. That is known as the option of DuPont framework. Helps to identify how profitability, activity and financial leverage trade off to determine the return on shareholders. कैसे आ रहा है? ROE is equal to profit margin into asset turnover into equity multiplier. अगर आप इसमें से डिडक्शन या काटें आपस में तो एट द एंड क्या बचता है? नेट इनकम डिवाइड बाय एवरेज टोटल इक्विटी। मींस रिटर्न ऑन इक्विटी इज डिपेंडेंट ऑन प्रॉफिट मार्जिन, एसेट टर्नओवर की कितना ज्यादा एसेट का टर्नओवर है एंड इक्विटी मल्टीप्लायर की कितनी फाइनेंशियल लीवरेज है। दैट इज द इंडिकेटर ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। ये कितनी ज्यादा आपने लीवरेज ले रखी है। और लीवरेज, लिक्विडिटी एंड प्रॉफिट, दीज थिंग्स कॉल्ड यू फॉर द आरओई, यानी आरओई इन तीनों चीजों से अफेक्टेड होती है। Because profit margin and asset turnover combines to equal return on asset and DuPont framework, so return on equity we have combined it to form that is the whole DuPont. यानी DuPont को short कर दिया because profit margin asset turnover combines to equal to return to asset. किसके equal हो जाता है? वो return to asset। देखिए first to profit margin और asset turnover दोनों की कैंसिलिंग करें टोटल सेल की तो क्या बचता है? ROA, return on asset. So net income is based on return on asset, ROE is dependent on return on asset and financial leverage. इन पे डिपेंड करता है आपकी ROE. However, there is some IFRS insights. The IASB defines revenue to include both revenue and gains. GAAP provides separate definition for revenue and GAAP. दोनों के लिए वो GAAP ने separate definition provide की है। यानी कि आईएएसबी में रेवेन्यू में इंक्लूड्स रेवेन्यू एंड गेन्स, गेन्स को इंक्लूड किया है बट गैप में गेन्स और रेवेन्यू को सेपरेटली डिफाइन किया है, जबकि आईएएसबी में बोथ आर सेम। रेवेन्यू रिकॉग्निशन फ्रॉड इज अ मेजर इश्यू इन यूएस फाइनेंशियल्स। दो फर्म्स थी जिसके अंदर ये बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन होता है, जैसे डच सॉफ्टवेयर कंपनी बान एनवी एंड जापानीज इलेक्ट्रॉनिक जायंट एनईसी एंड डच ग्रॉसर एहोल्ड। यानी द सेम सिचुएशन अकर्स ओवरसी एज एविडेंस्ड बाय द रेवेन्यू रिकॉग्निशन। मैंने पहले भी कहा था रेवेन्यू रिकॉग्निशन एक बहुत बड़ा मेजर इशू है जिसके थ्रू फ्रॉड होता है, और ये कंपनीज हैं जो उस फ्रॉड के जुमरे में आई थी और ब्रेकडाउन हो गई थी। Then IFRS has one basic standard on revenue recognition, IAS 18. GAAP has numerous standards for revenue recognition. एक स्टैंडर्ड नहीं है, जबकि IFRS के पास एक ही स्टैंडर्ड है। Accounting for revenue provides a fitting contrast of the principle based IFRS. यानी वो कहता है accounting for revenue provides fitting contrast of IFRS principle based rules and
रूल बेस्ड गैप अप्रोचेस, यानी कि वो फिटिंग कंट्रास्ट बता रहा होता है रेवेन्यू के भाई ये कितना डिफरेंस आ रहा है काउंटिंग ऑफ रेवेन्यू में. व्हाइल बोथ साइड्स हैव देयर advocates, the IASB and FASB have identified number of areas for improvement. यानी कि दोनों में इसमें काफी कंट्राडिक्शन है रेवेन्यूज को लेके, एक टोटली प्रिंसिपल बेस्ड है और एक टोटली रूल्स बेस्ड है. अंडर IFRS रेवेन्यू शुड बी measured at fair value of consideration received or receivable. GAAP measures based on fair value of what is up goods or services or fair value of what it is received, whichever is more clearly evident. यानी वो फेयर वैल्यू पे कर रहा है और यहाँ पे जो वो फेयर वैल्यू उसकी जो से दे दिया गया है या व्हाट दे हैव रिसीव्ड विच एवर इज मोर क्लियरली एविडेंट, उनकी बेस पे हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू को रिकॉर्ड करना है. IFRS में तो क्लियर है फेयर वैल्यू, लेकिन दूसरे में वो कह रहा है फेयर वैल्यू ऑफ वो अमाउंट जो ऑलरेडी हमने गुड्स दे चुके हैं या जो उसके अगेंस्ट हमने रिसीव करना है. और यही काम कर रहा है IFRS, वो कह रहा है कि कंसिडरेशन रिसीव और रिसीवेबल उसी की फेयर वैल्यू पे आपने वैल्यूएशंस करनी है. सो दैट्स द एंड ऑफ आवर लेक्चर नंबर 21. बट वी हैव स्टडीड टुडे द रिकग्निशंस. कंपेयर किया हमने दोनों कंप्लीशन और कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड मेथड और परसेंटेज कंप्लीशंस को. देन वी हैव स्टडीड द ओवरऑल मेथड ऑफ हाउ कि अगर हमें अनसर्टेनिटी हो कि रेवेन्यू रिकग्नाइज होगा कि नहीं होगा तो कॉस्ट रिकवरी को पढ़ा है, सेल्स इंस्टॉलमेंट मेथड को पढ़ा है, इन दोनों को हमने स्टडी किया है. देन वी हैव स्टडीड द फ्रेंचाइज के फ्रेंचाइज की एंट्रीज कैसे पास होंगी, जिसके अंदर हम देखा कि अगर फंडेबल है रिफंडेबल है तब क्या होगा, अगर नोट की सर्टेनिटी है या अनसर्टेनिटी है तो तब कैसी एंट्रीज पास होंगी. सो दैट्स द एंड ऑफ द टुडेज लेक्चर. आवर टॉपिक ऑफ रेवेन्यू रिकग्निशन हैज बीन कंप्लीट इन विच वी हैव स्टडीड वेरियस इश्यूज. सो दैट्स द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर. अल्लाह हाफिज.